Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Virgo Ascendant and how the month of November 22 is going to pan out for the Virgo Ascendant people. For Virgo Ascendant, the Ascendant Lord Mercury is the owner of first as well as 10th house, and it is going to be transitioning through the third house in the month of November. This is going to be an opportunity to improve relations with your younger siblings, plan for a short-term travel. In case you were planning to start a new venture or indulge yourself in a new hobby, then this month is going to be very supportive for you. The fifth house lord is also stationed in its own house and is also supporting a start of a new initiative. People who are doing jobs that are related to commission, brokerage, public relations, deal makers, marketing, and people who are involved in the printing and publishing businesses, they will also see a support during the month of November. This month is all about making effort and see your luck supporting you further and further. Sun is going to remain in its debilitation sign till 17th of November, and then it is going to move to its friendly sign in the third house. So Sun will also start favoring the aspects or the significations that are related to the third house. So as I said earlier, this month is all about utilizing the things that are shown by third house and are benefiting from them. So you could benefit from your younger siblings, your neighbors, short-term travel through your sheer luck or courage and the effort that you make on your work front. Third house is becoming exceptionally powerful in the month of November because three planets are getting stationed here. Further, Venus and Mars are also exchanging signs, and these three planets are also getting aspected by Jupiter through the ninth aspect and Mars through the seventh aspect. So, whenever the two planets exchange their signs, this exchange is considered extremely beneficial provided the houses involved are also beneficial. In this case, one house, ninth house, is extremely beneficial because it's trine, but third house is not considered that good from the horoscope point of view. So the results will not be as great as they will turn out for some other ascendants. So as I said, Mars and Venus are going to exchange signs when Mars moves back to the Taurus sign on 14th of November. This exchange of both the planets will ensure that your luck is going to be boosted, but this is going to happen through the amount of effort that you put in, which is shown by the third house, and also the courage that you are able to build in yourself in the month of November. This kind of exchange is also going to support you through the activities that are related to the third house or any professions that you pursue that are indicated by the third house. I have already spoken about them earlier. Jupiter is the lord of fourth and the seventh house and is passing through its own sign in the seventh house. So people who are unmarried, they will have an opportunity to get married till April 23. So month of November also supports this opportunity. Jupiter is also providing its permission to start your own business. So if your MD and AD is favoring you, Jupiter is also permitting you to start your own business in the transit for November. Sixth house lord Saturn is passing through the fifth, but both the fifth and sixth houses are owned by Saturn. Saturn never provides anything for free, it makes you work tremendously hard. So, making money through speculation is going to be extraordinarily difficult in the month of November. Also, a major change in the market indexes is indicated in the month of November, so it is better to stay away from speculation. People in jobs will start to experience traction on the luck factor in the later half of the month, especially after Mars moves to the Taurus sign on 14th of November. Rahu and Ketu continues to move through the 8th and the second house respectively. So Rahu in the 8th house is actually not good from the point of view of having diseases that are below the waist. So you can have diseases that are related to anal area like piles or even diseases that relate to your private parts. But this 8th house Rahu also means conflict with the family of your spouse or a frustration with the speech of your spouse, because this house also indicates the speech of your spouse. So Ketu sitting in the second house will also make you discontented towards your family or even towards self-earned wealth. So this placement will continue to bother you till November 2023.
Now, there are also certain dates when people need to be cautious and avoid taking any crucial decisions. These are the dates when moon passes through your 6th, 8th, and 12th house. So for the Virgo ascendant people, these dates are 3rd and 4th of November, 7th, 8th, and 9th of November, 17th and 18th of November, and 30th of November. These are the dates when you should avoid taking big decisions. Overall, this month is all about making an effort and amplifying your luck through your sheer effort and courage. So that's the summary for the Virgo ascendant people for the month of November. If you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कन्या लग्न के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसे साबित होगा। सबसे पहले हम लोग लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश बुध दशम भाव के भी स्वामी होते हैं, यानी कर्मेश और लग्नेश दोनों ही कन्या लग्न के लिए एक ही ग्रह है जो कि है बुध। ये तृतीय भाव में बैठा रहेगा नवंबर के महीने में। यहाँ पे ये आपको एक मौका दे रहा है अपने छोटे भाई बहन है उनके साथ संबंधों को सुधार करने में, अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए, और कोई भी छोटा अगर आप ट्रैवल करना चाहें, छोटी दूरी की ट्रैवल, तो भी उसके लिए भी ये अच्छा समय है। अगर आप कोई भी नया कंपनी खोलना चाह रहे हैं, कुछ नया वेंचर चालू करना चाह रहे हैं, या मान लीजिए कोई नई हॉबी भी परसू करना चाह रहे हैं, तो भी ये महीना आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ के भी आपको इसकी परमिशन दे रहा है कुछ भी नया काम शुरू करने की। जो भी लोग कमीशन से रिलेटेड नौकरियों में हैं, क्योंकि तृतीय भाव में वैसे भी बुध की ही राशि पड़ती है कालपुरुष कुंडली में, तो अगर आप कमीशन ब्रोकरेज से रिलेटेड कार्य करते हैं, पब्लिक रिलेशंस से संबंध रखते हैं, कहीं भी आप डील मेकिंग की काम में हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग पब्लिशिंग से जुड़े हुए हैं, तो इन सब के लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा निकलेगा। ये महीना पूरी तरीके से आपके लिए एफर्ट करने का महीना है। आप जितना ज़्यादा प्रयत्न करेंगे अपने एंड से, उतना ही आपका भाग्य बलवान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तृतीय भाव में 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और इनको 2 प्लैनेट्स और देख रहे हैं। मंगल देखेगा सप्तम दृष्टि से और गुरु देखेगा नवी दृष्टि से। तो यहाँ पे 5 5 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है तीसरे भाव पे, तो तीसरे भाव से जुड़ी हुई चीजें बहुत ज्यादा मजबूत होंगी इस महीने में। और इसीलिए आप जितना ज्यादा प्रयत्न करेंगे उतना ही आपका भाग्य मजबूत होगा, क्योंकि ये तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्य पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पे जिसे हम कहते हैं एफर्ट्स ड्राइव योर लक, वो चीज नवंबर में आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। यहाँ पे सूर्य द्वितीय भाव में बैठा रहेगा अपनी नीच राशि में 17 नवंबर तक, और इसके बाद वो अपने स्वयं के मित्र स्थान पे चला जाएगा तीसरे भाव में जहां मंगल की राशि पड़ती है। तो ये सूर्य भी आपके लिए तृतीय भाव से जुड़ा हुआ कार्य करने लग जाएगा। यानी कि अगर आप, जैसा मैंने पहले बताया, उन चीज़ों पे फोकस करते हैं नवंबर के महीने में, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा निकलेगा। शुक्र और मंगल का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। अब जनरली क्या होता है कि अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का एक्सचेंज होता है साइंस का, तो वो बहुत महायोग कहलाता है। लेकिन यहाँ पे नवम भाव तो अच्छा है, त्रिकोण स्थान है, लेकिन तृतीय भाव उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए ये रिजल्ट आपको इतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने कुछ बाकी लग्नों के लिए बन रहे हैं नवंबर के महीने में। यहाँ पे 14 नवंबर के बाद मंगल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 13 नवंबर तक वो दशम भाव में बैठा होगा। तो 14 नवंबर को जैसे ही मंगल यहाँ पे आएगा, तो आपको तृतीय और नवे भाव के रिजल्ट मिलेंगे। यानी आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ही आपको उससे कहीं ज़्यादा आपको लक आपका साथ देगा। इसीलिए यहाँ पे एक मौका बन रहा है तृतीय भाव से जुड़ी हुई चीज़ों से धन कमाने का नवंबर के महीने में। गुरु चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं और ये अपने ही भाव से गुजर रहे हैं, सप्तम भाव से। तो जितने भी लोगों का शादी नहीं हुआ है उनके लिए अच्छा समय है। अप्रैल 2023 तक गुरु उनको गोचर में हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो आप अपना चार्ट खोल के देखें, महादशा अंतरदशा अगर आपकी फेवरेबल है तो इस समय में आपका शादी होने का योग बहुत प्रबल है। और यहाँ बैठा गुरु आपको स्वयं का धंधा चालू करने की भी परमिशन दे रहा है। तो अगर उस तरह का कुछ प्लान कर रहे हैं तो अपना एक बार दशम भाव पे भी नजर डालिए। अगर वो सप्तम से जुड़ा हुआ है तो इस समय में आप अपना बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। छठवें भाव का स्वामी शनि पंचम भाव से गुजर रहा है। दोनों ही भावों का स्वामी शनि बनता है, छठवें भी और पांचवें भी। लेकिन पांचवें भाव में शनि भले अपनी राशि में से गुजर रहा हो, लेकिन शनि कुछ भी फोकट में नहीं देता। तो यहाँ पे अगर आप स्पेकुलेशन से पैसा कमाने जाएंगे तो आपको नवंबर के महीने में कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। वैसे भी जिस तरह की प्लेसमेंट बन रही है, तो नवंबर में मार्केट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा शेयर बाजार में अक्रॉस वर्ल्ड। तो यहाँ पे
आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है ये सब चीज़ से, क्योंकि फालतू अपना पैसा गवा के जब आपको प्लानिटरी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए महीने का दूसरा हाफ, खास करके जब मंगल 14 नवंबर को यहाँ आ जाएंगे उसके बाद से सर्विस पेशा लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा नवंबर के महीने में। राहु भी अष्टम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। राहु का अष्टम भाव से भ्रमण कभी भी अच्छा नहीं कहलाता। ये व्यक्ति को हमेशा कमर के नीचे संबंधी बीमारियां देता है, या तो व्यक्ति को मूत्राशय से संबंधित कुछ बीमारी होती है या पाइल्स वगैरह जैसे रोग होते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो सिग्निफिकेशन होता है कि आपके पति या पत्नी की स्पीच भी ये राहु दिखाता है और उसमें भी ये खराब करता है वहां बैठ के। तो आपको अपनी पति या पत्नी के बोलने से भी तकलीफ होगी। और मज़ेदार बात यह है कि उनको ये रियलाइज़ नहीं होगा कि आपको उनकी कही हुई बातें चुभ रही हैं। केतु भी द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो परिवार से भी कटाव आप महसूस करेंगे। अपने कमाए हुए धन से भी आपका कुछ खास लगाव नहीं रहेगा और ये स्थिति नवंबर 2023 तक बनी रहेगी। तो ये पोजीशन कुछ खास अच्छी नहीं कहलाती है, अष्टम में राहु और द्वितीय में केतु। अब कुछ ऐसे दिन भी रहते हैं जब व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए। ये वो दिन होते हैं जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से गुजरता है। कन्या लग्न के लिए नवंबर में ये दिन है 3 और 4 नवंबर, 7, 8 और 9 नवंबर, 17 और 18 नवंबर और 30 नवंबर। इन दिनों में आप सावधान रहिए और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। देखिए ये जो महीना है कन्या लग्न वालों के लिए, ये पूरी तरह से इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जो प्लैनेट्स का फोकस है वो तृतीय भाव पे आ गया है। तो आप जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उतना ही आपको लक फेवर करेगा इस महीने में। तो ये आपकी समरी है नवंबर महीने की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।